Hello everyone, welcome back to the channel One Act Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the grade 10th students, and in this video again we're going to do a poetry, and the name of the poetry is A Tiger in the Zoo. First of all, let's talk about a little bit about what is this poetry about. The name of the poet is George Leslie Norris. I know that in the NCERT textbooks it's just written Leslie Norris, but the full name of the poet is George Leslie Norris. Now, if you talk about the poet, this poet was very well known for his Welsh writings, and he is a prize-winning poet. His literary works have achieved great success all over the world. And if we talk about this poem is about the animal cruelty. And to be specific, the animals who are caged in the zoos for the fun of us, the human beings. We, the human beings, don't even understand that the animals who are caged and confined in the zoos out there, what kind of sadness and agony they go through. And I don't think that we'll be ever able to understand the pain and the suffering that all the animals of the zoo go through just because of our fun. In this poetry, the poet Leslie Norris, he has tried to explain the feelings of a tiger. As we all know that a tiger is one of the prestigious animal in the whole jungle, and a tiger is someone from whom every animal fears. I don't think there is any animal who would not fear a tiger, even if it is a lion, because I think I told you in the last video as well that a tiger is slightly more powerful than the lion, but the lion is the supreme just because of his pride. That's it. Okay, let's come to the poetry now. Just like the previous video, you will be seeing the stanza here. You will be hearing my voice from the background, and after that I will be explaining each and every line along with the word meanings. Okay, let's begin. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. In the first stanza, the poet is talking about that tiger who is caged in the zoo. He is telling us about the miserable situation that the tiger is suffering from. And उन्होंने बहुत ही ब्रीफ में एक पूरा, हम कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दिया है टाइगर का विदाउट इवन यूजिंग द वर्ड टाइगर. सबसे पहले आपको एक लाइन में मिलती है दैट ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. विविड मीन्स ब्राइट एंड स्ट्राइप्स मीन्स पट्टियां. नाउ वी ऑल नो दैट टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, एंड जब वो अपने छोटे से केज में कुछ कदम चल के पूरे केज को देखता है, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. जब वो चलता है अपने छोटे से केज में और वो अपने पूरे केज को देखता है, बट उस टाइम उसके चलने की आवाज बिल्कुल भी नहीं आती, बिकॉज द पॉज ऑफ अ टाइगर, पॉज मीन्स पंजा, टाइगर के पंजे के नीचे एक बहुत ही सॉफ्ट सा पैड लगा होता है, जिसकी वजह से उनके मूवमेंट की साउंड बिल्कुल भी नहीं आती. सो उसके मूवमेंट की साउंड नहीं है, बट उसके अंदर जो गुस्सा पल रहा है बंद होने की वजह से वो बहुत ज्यादा लाउड है. वो गुस्सा अंदर ही अंदर इतना बढ़ चुका है कि अगर उस गुस्से की आवाज हम सुन पाते तो शायद से वो बहुत तेज होती. नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, sliding through long grass. Now here the poet has taken us to the other situation, जहां पे वो बात कर रहे हैं कि अगर यही टाइगर जंगल में होता, फ्री होता, इंडिपेंडेंट होता, तो वो क्या करता और कहां कहां पे होता.
अपने पूरे एक डे में वो क्या क्या चीज़ें करता, वो कैसे अपनी लाइफ को जीता. सो इन द फर्स्ट टू लाइन्स we can read that he should be lurking in shadow, sliding through long grass. जंगल में जब एक टाइगर शिकार करने के लिए जाता है तो वो बहुत ही साइलेंटली मूव करता है, क्योंकि जंगल में अगर हल्की सी भी आवाज़ हो तो जो जानवर है जिसका शिकार होने वाला है उन्हें तुरंत तुरंत पता चल जाता है दैट द हंटर इज नियर बाय. दैट इज द रीजन वाई द टाइगर ऑलवेज लर्क्स इन द शैडो. लर्किंग का मीन्स होता है मूविंग फॉरवर्ड वेरी साइलेंटली. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. जंगल की घास बहुत लंबी होती है एंड टाइगर उसी घास के बीच में छुपते छिपाते धीरे धीरे पहुंचता है अपने शिकार के पास. नियर द वाटर होल. कहां पहुंचता है? जहां पानी होता है. पॉन्ड, लेक, तालाब, छोटा सा, कहीं पे भी जहां भी पानी होता है टाइगर वहीं पहुंचता है, बिकॉज उसी पानी के पास में उसका शिकार आता है. और शिकार कौन है? वेयर प्लम्प डियर पास. वहीं पे एक हिरन आता है पानी पीने के लिए एंड टाइगर उसी हिरन का शिकार करने के लिए ही मूव्स in the shadow very quietly and very silently, sliding through the long grass. Let's move to the next stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. In this third stanza, again we are reading about the tiger who is in the jungle. So he should be snarling around houses. Snarling का मतलब होता है the warning sounds which an animal gives before an attack. जो एक हल्की सी घबराहट होती है टाइगर की जब वो अटैक करता है उससे पहले. That is what snarling is. और अगर एक जंगल में रहता है टाइगर तो कई बार वो जंगल से निकल के आसपास के विलेजेस में भी पहुंच जाता है. So when he is in the villages, he always snarls and he always warns the people of the village to beware and to stay inside their houses. Because अगर आप बाहर आ गए and अगर आपका टाइगर से एनकाउंटर हुआ then there is no possibility that you will be spared. Bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. टाइगर जब विलेज में निकलता है तो उसके वाइट फैंग्स एंड उसके क्लॉज साफ दिखते हैं, साफ चमकते हैं. फैंग्स मीन्स द शार्प टूथ ऑफ द टाइगर. आपने देखा होगा टाइगर के दो बहुत ही शार्प टीथ होते हैं ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट. सो दोज आर फैंग्स एंड हिज क्लॉज. क्लॉज का मतलब होता है जो उसके पंजे के नाखून है. सो व्हेन द टाइगर इज आउट ऑन द हंट, his fangs and his claws are clearly visible. They are bare. They are totally naked. Everyone can see them and everyone should be afraid of them. Terrorizing the village. और उसके यही पंजे और उसके यही दांत पूरे गांव में दहशत भरते हैं. हर किसी को टाइगर से डर इसलिए लगता है because of the power of that animal. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन एक टाइगर अगर जंगल में रहता तो ये सब करता, बट ये टाइगर कहाँ पे है? He is in the zoo. और जू के अंदर उसकी की सारी ताकत एक कॉन्क्रीट सेल में कैद हो रखी है. इट इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स. बार्स मीन्स वो जेल में जो लोहे की सरिया लगी होती है, दैट रॉड्स, द मेटल रॉड्स, द आयरन रॉड्स, दोज आर कॉल्ड बार्स. उन बार्स के पीछे उसकी सारी ताकत कैद हो रखी है. वो चाह के भी उनसे बाहर नहीं निकल सकता और चाहे वो कितनी भी ताकत लगा ले लेकिन वो उन बार्स को तोड़ नहीं सकता. सो इसी वजह से वो हताश होके सिर्फ अपने पूरे केज को देखता रहता है, उसमें चलता रहता है. एंड he also ignores the visitors. जो भी जू में आते हैं विजिटर्स वो टाइगर के पास में आएंगे, पिक्चर्स क्लिक करेंगे, बात करेंगे एक दूसरे से, लेकिन टाइगर को उनकी प्रेजेंस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानता है कि इनसे मुझे कोई हार्म नहीं है, क्योंकि इनके अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि ये मुझे कोई हार्म पहुंचा पाए.
पर हाँ, टाइगर के अंदर बहुत ताकत है, लेकिन वो चाह के भी कोई भी हार्म नहीं पहुंचा पाता बिकॉज ही इज कन्फाइंड इन दैट केज. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और पूरे दिन के अंत में, लास्ट में, टाइगर अकेला है और जू में उसको आखिरी आवाजें कौन सी सुनाई देती हैं? जो पेट्रोलिंग कार्स पेट्रोलिंग पे निकलती हैं. पेट्रोलिंग माने गश्त. रात में जैसे पुलिस व्हीकल्स आपने देखे होंगे रोड्स पे, रात में पेट्रोलिंग करते हैं, दैट इज गश्त. तो रात में जू में जो पेट्रोलिंग कार्स निकलती हैं उनकी आवाज ही वो आखिरी आवाज है जो टाइगर को सुनाई देती है. और वो बेचारा अपने केज में बंद अपनी शानदार आंखों से सितारों को देखता है. उन सितारों को देखते हुए उसके मन में एक, हम कह सकते हैं, विश तो जरूर आती होगी ऑफ बीइंग फ्री. लेकिन जू में बंद होने की वजह से उसकी वो विश हर एक दिन टूट जाती है एंड उसकी लाइफ उसी डिसअपॉइंटमेंट में, उसी पेन में, उसी मिजरी में कंटिन्यू होती रहती है. सो आई होप यू लाइक द पोएट्री. If I talk about myself personally, I really love this poetry because इस पोएट्री ने हमें बहुत ही खूबसूरती से समझाया है दैट एनिमल्स के ऊपर हम कितनी क्रूअल्टी करते हैं. ह्यूमंस कई बार सिर्फ अपने फन, अपने बेनिफिट के लिए हेल्पलेस एनिमल्स को, बेजुबान एनिमल्स को, जो अपनी बात ना तो बोल सकते हैं ना समझा सकते हैं, उनको सिर्फ अपने मजे के लिए हम लोग कई बार इतना पेन और इतनी सफरिंग देते हैं दैट वो लाइफ टाइम उससे कभी भी रिकवर नहीं कर पाते. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज बी वेरी फ्रेंडली विद ऑल द एनिमल्स. यस, टाइगर सामने आ जाए तो उससे फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत है. बट यस, all the stray animals that you have nearby your houses, your localities, please be friendly with them, please be nice with them. They don't need anything from you, they just need your love. And अगर आप उन्हें प्यार नहीं भी दे सकते हैं तो एटलीस्ट उनको चोट ना पहुंचाएं. And for you, till then, be safe. And please remember, I asked you in the last video as well, stay connected to the channel because boards की डेट अनाउंस होने वाली है, डेट शीट आने वाली है. एंड जैसे ही डेट शीट आएगी वैसे ही आपके दिमाग पे प्रेशर बढ़ने लगेगा. प्रेशर बढ़ने की वजह से आप कई बार इंग्लिश को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं एंड आपका फोकस मैथ, साइंस, इन पे ज़्यादा चला जाता है. सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टू द चैनल. अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको खुद से ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश को. यू कैन जस्ट सी द वीडियो एंड यू विल बी गुड टू गो. ऑल्सो इस पोएम के भी राइम स्कीम्स एंड पोएटिक डिवाइसेस विल बी कमिंग अप इन अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, देखने में भी काफ़ी फिर टाइम निकल जाता है. सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो which will include all the rhyme schemes, all the poetic devices, and everything else which is required to get a better understanding of the chapter. Till then, stay connected and please, if you like the video, do like and share, and please comment down below if you have any more requests or queries to make. I will try my best to implement all those things in the upcoming videos. Till then, stay safe and take care. Au revoir.